इसको कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग से एक बारी। लेट मी शेयर द साउंड। अब ध्यान से सुनना ये चीज़ जो शुरू से बोली जा रही है। But if one computer were for micro and other one Mac OS install and how these two computers are communicate with each other. In order to complete successful communication, the computer and network for the different architecture, 7 OSI model, open system integration model, International Organization for Standardization in 1984, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Note that each layer is a package of protocol. If I say application layer, then it does not mean that it will include computer application like Chrome, Firefox, etc. But it include application layer protocol that I needed to build these application work correctly in a network or internet. Let's start with a component with their application. Application layer is network application. Network application leads computer application let you internet like Google Chrome, Firefox, Outlook, Skype, etc. Web browser is a network application running in your PC. It does not reside in the PCs, but it uses application layer protocol HTTP, HTTPS to do web surfing. Not only web browser but all network application including Outlook, Skype, etc. or all dependent on application layer protocol to function. There are dozens of application layer protocol that enable various function and this layer. All these protocol collectively on Chrome application layer. These protocol from the basis in various network services like file web surfing, email, virtual terminal, etc. File transfer is the help of FTP protocol. Web surfing is done with the help of HTTP, HTTPS protocol. For email, SMTP protocol is used and for virtual terminal, Telnet is used. So application layer provides such as services network application with the help of protocol to perform user activities. Next to application is presentation layer. Presentation layer which data to application layer. Each data is in form of character and number. Presentation layer convert these character and number to machine understandable binary format. For example, conversion for ASCII to MCB codes. This function of error disable is called translation. Before transmitted presentation layer reduces the numbers of bits that are used to represent the original data. This bit reduction process called data compression and it can be lossy and lossless. Data compression reducing the amount of file to use to store the original file as the size for file to reduce. This can be received at the various times. That is, data transmission can be faster. Thus, data compression very helpful to real-time video and audio streaming. To maintain the integrity of data before transmission, data is encrypted, and encryption enhancing the security of sending data and send the side in then receiver side data is decrypted. SSL protocol or secure socket layer protocol is used to presentation layer for abstraction and decryption. So presentation layer perform basic function translation, compression and encryption decryption. Now session layer. Suppose you have planned for a party, you have hired in different person, assume that activity runs smoothly. Helper will help you setting up, sitting, cleaning and then closing the party. Same is the case session layer. Session layer help in setting up and maintaining the connection, enabling sending and receiving of data followed by termination of connection or session. Like you hired some helper for a party, session layer 2 hires it to helpers call APIs over application programming interfacing. NetBIOS for network basic input output system is an example of API to allow application on different computation to communicate with each other. Just before a session for a connection at established to the customer server perform the customer call authentication. Authentication is a process of verify who you are. For this server uses the username password. Once and that username password are matched, the session or a connection is established between your computer and the server. After authenticating the user authorization is a process as to the server to determine with the help
permission to accessing a file. If not, you will get a message saying you are not authorized to access this page. Both of these functions, authentication and authorization, are performed by session layer. Session layer keeps a tracks or file that are being downloading. For example, a web page contains the text, image, etc. These texts and images are stored as a separate file on the web server. When you request a website in a web browser, your web browser opens a separate session for web server to download each of these text and image files for printing. For these files are received in form of data packet. Session layer interact which data packet belongs to which file, is text file or image file, and track where the receiving data packet go. If in case it go to web browser, that is session layer helps in session management. So session layer and session management, authentication and authorization. Your web browser for call function of session, presentation and application layer. Layer below session layer is transport layer. Transport layer control the reliability of communication to segmentation, flow control and error control. In segmentation, data received from session layer is divided into all data unit called segments. Each segment into its resource and port destination port number and sequence number. Port number help to directing segment to correct application, and sequence number helps to reassemble segments in correct order to form correct message at receiver end. In flow control, transport layer control the amount of data being transmitted. Consider a mobile is connected to a server. Suppose server get transmit data by maximum at 100 Mbps and our mobile get this data at maximum at 10 Mbps. Now we are downloading a file from server, but the server starts sending data at 50 Mbps, which is greater than the rate our mobile can process. So mobile with the help of transport layer can tell the server to slow down data transmission rate to 10 Mbps, so get data close. Similarly, server is sending data 5 Mbps. Mobile phone tells the server to increase the data transmission to 10 Mbps to maintain system performance. Transport layer also help in it does not. Yes, yes. वीडियो की आवाज नहीं आ रही? करेक्ट, कंप्लीट होने दो फिर देखते हैं। तो बीच में अभी बताऊंगा इसके आगे जब जा, क्योंकि यहाँ तक कल भी देखा था हमने, बीच में मैंने आपको बताया भी था कि इसके आगे और भी बताऊंगा अभी। तो लेट्स कंटिन्यू। अराइव द डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेस ऑटोमेटिक रिपेयरिंग to retransmit the below or corrupted data. A clock called checksum is added to in segment by the transport layer. It find out, receive and feed segment protocol. So transport layer ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और TCP, ये चेकसम और चुकसम जो भी है ये सिर्फ TCP UDP के थ्रू होता है। एरर कंट्रोल किसके थ्रू हो गया? TCP, क्योंकि TCP क्या है? कनेक्शन, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, रिलायबल है। यानी कि होता है कि जब एक पैकेट जाता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, तो इसलिए और कौन सी लेयर पर हो रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे ये सब चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, जैसे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल, HTTP, ये सब इसी टाइप से क्वेश्चन इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एरर कंट्रोल कौन सी लेयर पर होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पर काम करता है? ठीक है, तो ये सब इसी तरीके से होगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बोलूँ कि ये जो चीज़ें स्पेसिफिकली इसी की बात कर रहे हैं। आगे जो कोर्स होगा वो ऐसा कोई वीडियो नहीं है, मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन OSI मॉडल में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि मैं कि यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है, हमको क्या करना है, इन चीज़ों को रिमेंबर करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, ये एक तरीके से आप हमारे पास कहते हैं ना कि हमारे पास एक ये टूल्स है, टूल है आपका, जो एक चाबी है जिसकी पूरे एंटायर नेटवर्क को ट्रबल शूट करने की। अगर OSI मॉडल सही से समझ आ गया, देखो 100% तो अच्छे के नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर पैकेट लेवल पे भी जा सकते हो, अभी बहुत डीप है ये,
पैकेट लेवल के ऊपर भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। 100% तो बहुत मुश्किल है इसको समझना, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं अगर हम उसको समझ लिया, जब हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों में समझेंगे तो आपको वो चीज़ें आसान लगेंगी, या ये समझ आ जाए कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, अच्छा ये वैसे काम कर रहा है। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको पैकेट ट्रेसर के अंदर भी दिखाऊंगा कि पैकेट जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सब आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा साथ में, और वो किससे रिलेटेड होंगे, सी और साई मॉडल से होंगे। तो अगर आपको लेयर पता ही नहीं है, अगर आपको टीसीपी यूडीपी मालूम ही नहीं है, तो आपको लिखा होगा टीसीपी, आपको पता नहीं क्या चीज़ है। तो दैट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे चाहे ऑथेंटिकेशन हो, चाहे एरर कंट्रोल हो, चाहे फ्लो कंट्रोल हो, कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, पोर्ट नंबर क्या होती है, मैक एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, पीडीयू कहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत रिमेंबर करनी पड़ेंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा, एक दिन में आपको याद हो जाएगी, ये बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपको समझनी पड़ेगी। और जब हम आगे चलेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तब आप तभी आपको आगे समझ आएगी। लेकिन हाँ, ये चाबी है, ये एक तरीका टूल है जो आपको सारी जगह पे हेल्प करेगा, क्योंकि इन्हीं में से खोद खो के चीज़ें नहीं निकाली गई बार बार। तो आगे जो मैं प्रैक्टिकल पे जाने वाले हैं, जो राउटिंग हम पढ़ेंगे, तो राउटिंग के लिए भी हम पढ़ेंगे कि राउटर एक्चुअली में होता कैसे है, पहले टीसीपी, ताकि आपको फिजिकली कहीं करना पड़े, राउटर अपने पीसी से कनेक्टर में जो भी आप कर पाओ। तो कोशिश यही करता हूँ कि आपको फिजिकली भी समझ आए और इसके जो पीछे रियल लॉजिक चल रहे हैं वो भी समझ में आए, और प्रैक्टिकली भी हम समझेंगे साथ साथ उनको लॉजिक को लेकर। लेकिन पहले में थ्योरी समझने की जरूरत है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में कौन सी चीज़ क्या बोलते हैं। तो जैसे कहने का मतलब, अगर आप किसी किसी फैक्ट्री में चले जाओ, आपको नाम ही नहीं पता, तो आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, आपको उससे कीवर्ड ही नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें मशीन है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा। तो उनकी अपनी कीवर्ड्स होते हैं फैक्ट्री के, उनको चलाने के, उनके मशीनी के अपने कीवर्ड्स हैं। तो वैसे ही हमारे नेटवर्क का सारा भार इस ओएसआई मॉडल के ऊपर ही है, और सब कुछ इसी से पॉसिबल है, यानी कि इसी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो सारा कुछ हमारा यहीं से होता है। और हम आगे आगे जो प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, जो राउटिंग पढ़ेंगे, जो स्विचिंग पढ़ेंगे, वो सब इन्हीं लेयर्स के अंदर से उठ के आई हैं, निकल करके आई, यानी कि ये कह सकते हो कि उनको इन्हीं लेयर्स के बेसिक पे बनाया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो, ऐसा नहीं है कि इसको जो है इग्नोर नहीं करना। कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे हमने कल भी देखा कि आगे आओ भी समझाने वाले बीच बीच में। यहाँ तक हमने कल देखा था टीसीपी यूडीपी, और अब हम इसका ओवर यूज भी समझ चुके हैं। पहले जब मैं बताया इसको एक्चुअली में टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल काम करता कैसे है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज: connection oriented transmission and connectionless transmission. Connection oriented transmission is done via TCP, while connectionless transmission is done via UDP. ये टीसीपी यूडीपी वाला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पक्का पूछ सकता है, और साथ में ये जो आपका एग्जाम में भी आता है, because it does not provide any feedback another data really debug, whereas TCP provide एक्चुअल टर्म जो है ना, फीडबैक की जगह पे एक्नॉलेजमेंट। यूडीपी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, फिर टीसीपी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। दोनों की जरूरत है। जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ऑडियो वीडियो स्ट्रीम करना है, तो यूडीपी काम करके, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि चाहिए कि वो पहुंचा नहीं पहुंचा। जब हम लाइव मैच देखते हो और आपके एंटीने में या आपके कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो शॉट दोबारा थोड़ी देर से अंटी अल्लाह आपको रिकॉर्ड ना कर रहे हो, तो आप वो शॉट नहीं दे सकते, क्योंकि वो निकल गया, क्योंकि लाइव देख रहे हो, क्योंकि लाइव किसके थ्रू आ रहा है, यूडीपी के थ्रू। और यूडीपी भाई कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, ओहो ये पैकेट मिस हो गई, ये दोबारा भेज। लेकिन टीसीपी भेजता है। टीसीपी अगर तो अच्छा, ये पैकेट मिस हो गया तो अच्छा वो दोबारा भेजेगा, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो यहाँ पर रियल वर्ड एक्नॉलेजमेंट है, नॉट फीडबैक, नो एक्नॉलेजमेंट समझो। यूट्यूब भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। Therefore, lost data can be retransmitted in TCP. UDP is used where it does not matter whether we have received all data. For example, online streaming song, games, voice over IP, TFTP, DNS, etc. On the other hand, TCP is used where full data being, for example, World Wide Web, email, FTP, etc. So, transport layer is called segmentation, flow control, error control, connection oriented and connectionless transmission. Transport layer, data segment to network layer, receive data segment from one computer to another located in different network. Data unit,
in the network layer are packets. It is the layer in router decide. The function of network layer are logical addressing, routing, and path determination. IP addressing. IP is called logical addressing. Every computer in network is a unique IP address. Network layer assigns senders and receivers IP address to each segment to form an IT packet. IP addresses are assigned to ensure that each data packet to reach the correct destination. Routing is the method for whom the data packets to source to destination, and it is based on the logical address format of ID address to IPv6. Suppose computer A is connected to network 1, computer B connected to network 2. From computer B, we have requested to access facebook.com. Now there is a reply from Facebook somewhere from computer B in the form of packet. This packet needs to be delivered computer view only. Since it is network, each device is unique IP address, so it both computer will be having unique IP addresses and well. Network layer of the network server has already added sender and receivers IP addresses in the packets. Suppose यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि रियल टाइम में ये जो IP होगा इसने 192 वाला लिखा है उसको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पब्लिक आईपी होता है क्योंकि फेसबुक हो तो पब्लिक सर्वर है और पब्लिक आईपी यहाँ पे असाइन होगा और आपके कंप्यूटर को भले ही कंप्यूटर आईपी से साइन हो लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होगा वो जो वायरलेस वाला मॉडेम आपका काम कर रहा होगा वो यहाँ आपको पहले बताया वो नेट करेगा और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा और प्राइवेट पब्लिक को बदल देगा और जब ये प्राइवेट आईपी facebook.com एक्सेस करने की कोशिश तब वो पब्लिक बन के बाहर निकलेगा और जब ये इसका रिस्पॉन्स आएगा facebook.com से तब वो प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट बन के आ जाएगा। तो वो काम किसका है बीच में जो मॉडेम लगा है जो आपका डिवाइस लगा है उसका काम है या फिर आप इसको राउटिंग भी बोल सकते हो। और अगर हम बात करेंगे नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 इन दोनों में दो कंप्यूटर लगे और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये नेटवर्क दूसरा है किसी और कंपनी का है इसका नेटवर्क बेस आईपी कुछ और इसका आईपी कुछ और है। तो इसके दोनों के कुछ डिफरेंट नेटवर्क की वजह से क्या हो गया यहाँ पर राउटिंग हुई यहाँ पे राउटर बैठा होगा नेटवर्क पर और राउटिंग करेगा फिर वो पैकेट भेजेगा पब्लिक सर्वर को आईएसपी को फिर जिस पे फेसबुक जिस जगह की आईएसपी मांग लो उस वाले पब्लिक आईपी को देगा जो यहाँ पर राउटर पे फिर आपका इस नेटवर्क पे पैकेट आएगा। तो ये जो अभी हम समझ रहे हैं ये सब प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं और इन आईपीस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं अभी आपको किसके बारे में आईपीस के बारे में। तो अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके बारे में लेकिन हम आईपी से पहले अभी क्या समझ रहे हैं वो एसआई मॉडल समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क का कम्युनिकेशन कैसे होता है या फिर आपका facebook.com कैसे होता है ये मैं बता ही चुका हूँ पहले से लेकिन ये सिर्फ बता रहा हूँ बट इसने क्या किया है ये गलत आईपी यूज़ कर क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है हम किससे बात करनी है पब्लिक आईपी से जिसके शुरू होती है और बीच में क्या होता है नेट होता है ये रियल सीएनआर में। तो बताइए सही है लॉजिकल ठीक है लेकिन जो फिजिकल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी गलत है कोई बात नहीं लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ कि जो राउटर है आपका वायरलेस राउटर घर वाला वो नेट करता है वो कंपनी में भी नेट होता है। अगर आपके कंपनी के पास एनलेस अंटल कोई पब्लिक सर्वर नहीं तब तक सारा ट्रैफिक नेट होके जा रहा है जा भी रहा है और आ भी रहा है। नेट मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफर और जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है जिसका हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल खुद करेंगे यानी खुद आईएसपी बन जाएंगे खुद हम डिफरेंट नेटवर्क बन जाएंगे हम खुद ही इंटरनेट बन जाएंगे और फिर से क्या करेंगे उसके बीच में नेट करके दिखाएंगे आपको वो भी हम करेंगे। ठीक है उसका भी कंसेप्ट पहले समझेंगे ऑलरेडी डिटेल में बाद में। तो अभी हम यहाँ पे वो अच्छा ही मॉडल को कंटिन्यू फिर से करते हैं। मास्क यूज फॉर 225.225.225.0 दिस मास्क हेल्प्स ये गलत लिख दिया 255 होता है ये गलत लिख दिया है इसको थोड़ा सा दिमाग में दीजिए 225 लिख दिया 255 होता है .0 इसीलिए जो है ना वीडियोज़ में सही भी नहीं होता है। कोशिश करते हैं जो भी करता है इसमें बेचारे बनाने की काफ़ी हद तक इसकी ग्राफिक्स बड़े अच्छे हैं देखने में बेचारा ऐसे डिज़ाइन कर रहा है बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें इसमें गलत है। तो 255 सबनेट मास्क होते हैं क्लास सी का आईपी है एक तरह से। तो चलो खैर लेकिन हमें लॉजिक से मतलब है खाली भी फिलहाल में। फर्स्ट थ्री कम्युनिकेशन डिफरेंट represent network while the last communication represent computer B. So based on IP address format receive data packet first to network 2 and then to computer B. So based on IP address and mask routing decision are made in a computer network. Now
path determination means a computer can be connected to internet server और एक कंप्यूटर पाथ डिटर्मिनेशन वही चीज़ बताने की कोशिश करा जो मैंने आपको बताया कि आपको दिल्ली से पुणे जाना है, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बेस्ट रास्ता कौन सा है वो आप डिसाइड करोगे, यानी डिटरमाइन करोगे कि पाथ बेस्ट रास्ता कौन सा है, ट्रेन से सस्ता पड़ रहा है या पैदल सस्ता पड़ रहा है, या मतलब कौन सी रोड ज़्यादा अच्छी है, सड़क कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कहाँ से मुझे जाना चाहिए। तो वो पाथ डिटर्मिनेशन का काम कौन कर रहा है, कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर पे। और वहाँ पे कौन करता है ये काम, राउटर करता है, क्योंकि राउटर का यही काम है डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना। और बीच में क्या है, बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे पाथ होगा, तो पाथ को डिटरमाइन करने को हम पाथ डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यूअर कि पाथ डिटर्मिनेशन कौन सी लेयर पे होता है, तो आप बोलोगे नेटवर्क लेयर, तो आप बोलोगे, वो पूछेगा कौन सी डिवाइस करती है, तो आप बोलोगे राउटर। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। इन ए नंबर ऑफ डिवाइस choosing the best possible path for data delivery from source to destination is called path determination। रियल इन्वायरमेंट में ये आपका आईएसपी हो सकता है नंबर वन, और ये इसका आईएसपी हो, बीच में ये सारे आईएसपी मान के चलो आप। ई आईएसपी ने इसको भेजा, ई आईएसपी ने इसको भेजा, ई आईएसपी बोल रहा है अच्छा मेरा रास्ता तो ये वाला बेटर है, नहीं नहीं नीचे से जाऊंगा या ऊपर से। अब ऐसे ही बहुत सारे बीच में आईएसपी हो सकते हैं, लोकल आईएसपी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आईएसपी के अंदर अंदर क्या होता है, उसके पास भी राउटर होते हैं, तो एक्चुअली में इसको हम इसलिए राउटर मान लेते हैं। लेयर 3 डिवाइसेस यूज प्रोटोकॉल सच एज ओपन सोर्टेड पाथ फर्स्ट बॉर्डर्ड गेटवे प्रोटोकॉल इंटरमीडिएट सिस्टम टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर डेटा डिलीवरी। ये डेटा लिंक ओएसपी बीजीपी ये सब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की, राउटिंग प्रोटोकॉल में कौन कौन से टाइप के होते हैं और हर एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे। तो आईएसआईएस बीजीपी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ओएसपी हम पूरा जो भी सीसीएनए के हिसाब से जो डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली। और भी प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ईआईजे रीप, वो भी हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, ये कहाँ काम करते हैं, राउटिंग करते हैं और ये राउटर के काम करते हैं। तो नेटवर्क लेयर का काम हो गया पाथ डिटर्मिनेशन, और आपका राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग, ये सब काम किसका है, नेटवर्क लेयर का। डेटा डिलीवरी, data link layer is used to data packet from network layer. Data packet contain IP addresses of data. There are two kind of addressing, logical addressing and physical addressing. Logical addressing is done at network layer and sender and receiver's IP addresses are assigned to each segment to form a data packet. Physical addressing is done at data link layer. MAC addresses for sender and receiver are assigned to each data packet to form a frame. MAC address is a 12-digit numeric number and embedded in network interface काम for the computer by your computer manufacturer। जैसे MAC एड्रेस क्या होता है, हर एक लैन कार्ड में इनबिल्ट होता है, तो वो आपको पता ही है, वो फिजिकल एड्रेस है। डेटा यूनिट डेटा लिंक लेयर इज कॉल्ड फ्रेम। डेटा लिंक लेयर इज एम्बेडेड एज सॉफ्टवेयर। जब तक इसके पास आईपी थे, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सेगमेंट मतलब डेटा ऊपर से आया हो, जब तक ये पैकेट था, जब इसके साथ मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जुड़ गया, तब ये फ्रेम बन गया। ठीक है, और ये जो टेल होती है इसके अंदर इस सब FFCS, FC5 सीक्वेंस, CRC, रिडंडेंसी चेकसम, ये सब इसके अंदर जुड़ जाता है। एंड प्रोवाइड ट्रांसफर डेटा टू वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वाया लोकल मीडिया। लोकल मीडिया इंक्लूड कॉपर वायर, optical fiber or air for reducing Alpha. Please note that media does not respond to audio, video, animation. It refers to physical links for a computer for a network. Data link layer perform two basic functions. It allows upper layer to hostile media to access media using techniques such as framing. It controls how data is placed and received from media using techniques such as media access control, error detection. Consider two distance for a laptop, a desktop communicating with each other. एरर कंट्रोल जो है वो आपका टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है, लेकिन एरर डिटेक्शन कहाँ पर होता है, वो आपका डेटा लिंक लेयर पे होता है। ठीक है, एरर कंट्रोल कोई पूछेगा तो कहाँ होता है, एरर कंट्रोल होता है आपका जो कि आपका पैकेट नहीं गया तो दोबारा भेजेगा, लेकिन एरर डिटेक्शन कहाँ होती है, आपके डेटा लिंक लेयर पे। इसकी जो फ्रेम जो भेज रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको टीसीपी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डेटा लिंक लेयर वो आपको मालूम ही नहीं टीसीपी क्या होता है, उसको सिर्फ फ्रेम से मतलब है, यानी डेस्टिनेशन मैक से मतलब है, मीडिया से मतलब है।
तो उसके हिसाब से मीडिया मतलब जो हम उसमें तार यूज़ करते हैं। As laptop and desktop are connected to different networks, so there will be using network layer protocol IP। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये कभी भी आपके सैटेलाइट से नहीं जुड़े होते हैं। रियल में आपको पता है कि ये आपकी फाइबर ऑप्टिक पास जो समुद्र में बिछी है उससे जुड़ता है, तो ये भी चीज़ याद रखना। कम्युनिकेट विद ईच अदर। इन दिस एग्जाम्पल डेस्कटॉप और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट फ़ोन भी लाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। जो टूल्स होते हैं, जहाज़ होते हैं, पानी वाले जहाज़, वहाँ पे तार फोम फाइबर ऑप्टिक कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर उसका सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जगह पे। तो वो अलग कहानी है, तो सैटेलाइट वाला कहानी अलग है। लेकिन हमारा मोस्टली नेटवर्क जो चल रहा है, फिजिकल वायरिंग जो हमने बिछा रखी है पूरे वर्ल्ड में, उससे चलता है। कनेक्टेड टू राइटर वन वायर इथरनेट केबल, router R1 and R2 connected via a satellite link and laptop, बट ये सैटेलाइट लिंक नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये आपकी फाइबर तार समझ लो इसको। connected to router R2 via a wireless link. Now desktop want to send some data to a laptop based on the media, the router R1 data link layer, and then some data, the head and tail of IP packet, and converts into a frame, Ethernet frame in this case. Router R1 receives this connected frame, decapsulates it into IP packet, and then encapsulate and then frame so that it can close satellite link to reach router R2. Our router R2 will again decapsulate the receive frame and encapsulate it again to form a wireless data link frame. Laptop receive this wireless data link frame, decapsulate in IP, and then forward IP packet to network layer. Finally, data arrives application layer. Application layer protocol then make the received data visible to the computer screen. So network layer for higher level layer are able to transfer data over media with the help of data link layer. That is, data link layer provides access to media for higher layer to outside model. Data link layer also control how data is placed and received from the media. The technique used to get the frame on and off the media is called media access control. Then maybe a number of devices connected to common media. If two or more devices connected to the same media send data at the same time, then there may be possibility of collision of the two messages, resulting in usage message that neither SMP understand. To avoid this situation, data link layer keeps an eye on when the shared media is free, then device can transmit data for the receiver. इसके बाद वह कर रहा है CSMCD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। सो वो CSMCD मैंने आपको बताया कि डेटा लिंक लेयर में होता है, क्योंकि आपका लैन कार्ड के ऊपर होता है, वो चेक करता रहता है, अच्छा कोई डेटा नहीं भेज रहा है तो वो चलो भेज देते हैं। तो जो आपके डेटा लिंक लेयर यानी लैन कार्ड के ऊपर काम करता है, this is called carrier sense real sense. So data link layer with this media access control method control data transmission. Tail of each frame contain bits which are used to detect error in the receive frame. Errors occurs due to certain limitations for the media used for transmitting data. The last layer is physical layer. Till now, data from application layer and this segmented by transport layer placed into the packet by network layer and which is a sequence of wiring लॉजिकल एड्रेसिंग, वो पूरा क्या किस में बदल गया, पैकेट में बदल गया। और ये सारा का सारा जो इकट्ठा होके सोर्स मैक डेस्टिनेशन पैकेट और ये FCS लग गया साथ में, तो उसके बाद ये क्या बन गया, फ्रेम बन गया, क्योंकि वो डेटा लिंक लेयर है। उसके बाद फिजिकल लेयर में क्या बन जाएगा, 0101 बन जाएगा। फिजिकल लेयर कन्वर्ट दिस बाइनरी सीक्वेंस इनटू सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट ओवर लोकल मीडिया. It can be a electrical signal in case of copper cable or LAN cable, light signal in case of optical fiber, and radio signal in case of air. So, signal generated by physical layer depends on the type of media to, to connect to devices, and the receiver physical layer receives signals, convert in to read and pass it to data link layer as a frame. Frame is called decapsulated as data moves to higher layer. Finally, data is moved to application layer. Application layer protocol makes the sender's message visible to in the application in the receiver's computer screen. In this way, OSI model is helping for transfer data with different computers. So these 7 layers of OSI model are lined behind
इफ़ यू हैव लर्न सम, ठीक है। तो इसके इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट यहाँ तक किसी को ओएसआई मॉडल में? नो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डेटा मूव कैसे हो रहा है वो हमने समझना था, और इसके बीच में जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर वो हम सब बात करेंगे। तो हम एक और चीज़ के बात में करते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पूछो। कौन दिखा रहा है, किसके पास दिखा रहा है? आपका फिजिकल जो है कनेक्टेड नहीं है पीसीबी नेटवर्क से। पिंग कर, बट मीडिया डिस्कनेक्ट थोड़ी दिखाएगा, मीडिया तो कनेक्टेड ही दिखाएगा ना। अगर वीपीएन, नहीं, आईपी कन्फिग मैं करूँगा तो मैं ट्राई करता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। ये देखो आ गया। मीडिया डिस्कनेक्टेड किसका दिखा रहा है? ये इथरनेट का दिखा रहा है। ये वाला मेरा लैन कार्ड यूज ही नहीं हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है? वायरलेस कनेक्टेड। अब मीडिया डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, जो इथरनेट अडेप्टर यूज नहीं है आप उसको चेक करो, एक ना एक लैन कार्ड आपका जिस चीज़ से कनेक्ट होगा वो दिखाएगा। सारे लैन कार्ड नहीं दिखा, क्योंकि मेरे पास इसमें 3-4 लैन कार्ड लगे हुए हैं, तो इसमें वायरलेस से जुड़ा है, तो अभी वायरलेस का आईपी कनेक्टेड दिखा रहा है। और अगर ये लोकल एरिया से जुड़ा होता है लैन से, ये अलग से दिखा रहा है। तो मेरे साथ 3-4 चीज़, तो मीडिया डिस्कनेक्ट जब दिखाए, जब जिस वाले अडेप्टर से नहीं जुड़ा होगा उसको दिखाएगा। हाँ, हार्डवेयर लैन कार्ड मीडिया डिस्कनेक्ट, लैन कार्ड से कोई चीज़ नहीं जुड़ी है, मतलब मेरे पास 5-6 लैन कार्ड हैं। देखो यहाँ पे जिन से मीडिया डिस्कनेक्ट दिखा है, इसका मतलब उससे नहीं जुड़ा है, लेकिन जिससे जुड़े उसका दिखा रहा है आईपी। तो अगर मैं अपने आप को पिंग करने की कोशिश करूँ तो खुद को ही, तो मैं पिंग 192.16 168.1.39, ये मेरा लोकल आईपी एड्रेस है। देखो ये पिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिप्लाई आ रहा है 4 बार। यहाँ सबसे नीचे देखो ध्यान से, यहाँ लिखा होता है 0% लॉस। अगर ये 100% लॉस होता है इसका मतलब पिंग नहीं हुआ। ये बोला 4 बाइट फेंके थे, 4 रिसीव हुए। ठीक है, ये तो इको रिप्लाई की तरह होते हैं। ये मैंने बोला, उसका रिप्लाई उधर से आ गया, इसका मतलब ये पिंग हो रहा है। ये पिंग नहीं हो रहा, पिंग कर लो। तो पिंग करने का मतलब यहाँ पर, क्योंकि पिंग जो प्रोटोकॉल है, जो पिंग प्रो कमांड है यहाँ पर, वो कमांड के पीछे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? आईसीएमपी। और आईसीएमपी कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। समझनी चाहिए। डेस्टिनेशन होस्ट या अनरीचेबल, मतलब आपकी गेटवे तक पैकेट जा रहा है लेकिन आगे उसको मिल नहीं रहा रास्ता। ठीक है, ये जो उसके पास जो उसका रास्ता है, उसका राउटिंग नहीं है आगे उसके पास, या उसके पास रास्ता नहीं है, इसलिए उसको मिल नहीं रहा, तो अनरीचेबल दिखा रहा है। तो मैं किस चीज़ की बात करने वाला था? टीटीएल होता है टाइम टू लिव। टीटीएल वैल्यू का मतलब होता है बेसिकली कि आपकी टाइम टू लीव का वैल्यू होता है जब आप पिंग करते हो, तो यानी कि वो पैकेट जो है ना कितनी देर उसमें रहेगा, नेटवर्क में रहेगा। तो हमारे जो पीसीस के टीटीएल वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट 128 होती है, और जो राउटर्स की टीटीएल वैल्यू होती है 255 होती है। तो टीटीएल वैल्यू होती है कितने राउटर्स के थ्रू जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई पैकेट फेंका और उसका टीटीएल वैल्यू नहीं है, अनगिनत है, अनलिमिटेड है, तो सोचो आपने किसी को पिंग किया जो नेटवर्क में है ही नहीं,
एक्चुअली में आपने एक ऐसी आईपी को पिंग कर दिया, आपने ऐसी वेबसाइट खोलने की कोशिश करी जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हुआ क्या, आपका पैकेट जाएगा आपके इस आईएसपी के, आईएसपी बोले मेरे पास नहीं है आगे भेज दे दो, वो क्या आएगा, अच्छा मेरे पास नहीं है आगे भेज दो, वो कहेगा मेरे पास नहीं आगे, ये चलता रहेगा, लूप पे घूमता रहेगा पूरे इंटरनेट में वो पैकेट। तो उसकी जो है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेड टाइम जो उसकी डेथ है वो हमें निश्चित करनी पड़ती है। तो मैं उसको ये बता रहा हूँ कि इस चीज़ को बोल रहा है, अगर जिस पैकेट को मैंने फेंका है, अगर वो 128 राउटर्स के थ्रू होके वापस आया मैक्सिमम, अगर वो नहीं मिला तब भी उसको पैकेट को, तब उसको मतलब उसको डेड कर देना, वो लूप होता रहेगा नहीं तो, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वो हमारे अंतरिक्ष के चक्कर काटते रहते हुए घूमती रहेगी, तो हम उसको सेट कर देते हैं, अगर वो 10 दिन तक घूमती रहे तो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यहाँ से टीटीएल वैल्यू होती है हमारे नेटवर्क में, अगर अगर किसी तरह से चलता रहा और मैंने कोई टीटीएल वैल्यू दी नहीं किसी भी चीज़ की, तो क्या होगा, पूरे इंटरनेट में हजारों करोड़ों पैकेट घूमते रहेंगे, तो ये उसको भेजेगा वो उसको भेजेगा, कहने का मतलब हम दोस्त दोस्त हैं। और हमने 10 दोस्त सिर्फ डायरेक्ट एक दूसरे के दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त श्याम है, श्याम का दोस्त राम है, राम का दोस्त नवीन है, नवीन का दोस्त तो आकाश है, आकाश का दोस्त कुछ और है, ऐसे ही चल रहा है। और मैंने उसको बोला है मैंने पानी पिला दे, वो उसको बोल रहा है उसको पिला दे पानी, वो कह रहा है पानी दे दे पानी दे। तो वो घूमे जा रहा है, वो वापिस मेरे पास आ रहा है बोल रहा है पानी दे, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं तो पूछा, मेरे से पूछ रहा है दोबारा, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में घूमे ना हो पैकेट, इसलिए उसकी टीटीएल वैल्यू रखी जाती है। दो टीटीएल वैल्यू टीसीएस जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके 128 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और हमारे जो टीटीएल होती है जो राउटर्स के ऊपर वो 255 होता है, यानी 255 राउटर्स के बाद पैकेट्स मर जाएगा। अगर उसको रिप्लाई नहीं मिला तो, अगर मान लो 100 के बाद रिप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं, 254 पे भी कोई रिप्लाई मिले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो पैकेट है हमारा यहाँ पर टीटीएल वैल्यू इसकी ये, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ ना टाइम मिली सेकेंड में, ये होता है कि कितनी देर में रिस्पॉन्स आया उसका, तो ये मिली सेकेंड। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे गूगल पिंग करूँगा तो इसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो गूगल के सर्वर से होके आया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पिंग google.com, टीटीएल समझ में आ गया आपको। और रिस्पॉन्स टाइम जो इसका टीटीएल वैल्यू 119 है, क्योंकि google.com ने वो सेट करवा रखी भैया मेरे पे 119 तक मिल जाऊंगा तुमको। और ये जो आपका यहाँ टाइम टू 39 मिली सेकेंड का ये बोल रहे हैं, 39 सेकेंड लगे हैं मुझे गूगल से रिस्पॉन्स लाने में। तो ये सब का अलग अलग हो सकता है। अगर मैं मान लो किसी और वेबसाइट को पिंग करने की कोशिश करता हूँ ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम अलग हो सकता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, 51 43 के, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और इसका सीटीएल वैल्यू क्या था, तो फेसबुक कहती है अभी मैं 58 मैक्सिमम पैकेट को घुमा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, तो वो उन्होंने सेट कर रखा है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में जो सेट होता है, अगर हम अपनी लैन में बात करें तो वो कितना होगा आपका टीटीएल वैल्यू, वो आपका 128 ही रहेगा, 128। लेकिन अगर हम राउटर्स के अंदर जब हम काम करेंगे तब वो एक 255 हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में समझनी है। हाँ, कितने होस्ट से आया है, कितने कंप्यूटर राउटर से बेसिकली होके आया है। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस यस, यू आर राइट, यस यस, दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड। वो डेड हो जाएगा, वो 256 के बाद कुछ होता ही नहीं है।
नहीं हो सकता, यही तो बोल रहा हूँ आपको, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो आपके पास जो लास्ट में कोई बैठा होगा ना, यानी कि जो लास्ट वाला वो होस्ट होगा वो उसको रीसेट कर देगा टीटीएल वैल्यू को दोबारा से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आपकी जो पैकेट है ना वो उतने होप के अंदर अंदर वापस आने चाहिए। वो क्या करता है ना कि मर्ज हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपके पास हज़ारों इस तरीके से ट्यून कर रखा है कि आपका जो टीटीएल वैल्यू यानी कि जो पैकेट है ना वो कितने राउटर्स के अंदर से होकर के वापस आ जाए, उसका टीटीएल वैल्यू उतना नहीं होता कि वो 1000 टीटीएल वैल्यू रख दिया, 1000 राउटर होकर वापस आएगा। तो वो आपका आईएसपी टू आईएसपी होता है, पूरा आईएसपी एक टीटीएल के नाम पे काम करता है। यानी कि एक टीटीएल होगा, यानी कि ए आई एस पी के ए आई एस पी के 1000 राउटर हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा था क्या बता रहा था मैं आपको एक्चुअली बीच में, चेक, 1 सेकेंड, होल्ड। कुछ याद आया था मुझे, मिल नहीं रहा, होल्ड ऑन। नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है। जब आप पिंग करते हो तो आपको आईपी दिख जाता है, उसमें भी क्या डालना है क्या नहीं। ट्रेसेट कमांड होता है, वो ट्रेसेट का ज़्यादा नहीं रहता है, वो फेसबुक को करोगे तो वो हमेशा 10-15 हुक में ही आपको घूम के वापस आ जाएगा। देखो जैसे ट्रेसेट करोगे आप, तो मान लो google.com को ट्रेसेट किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या कर रहा है, ये बोल रहा है पहले DSL डिवाइस डॉट लैन पे जाए जो कि मेरा राउटर है, उसके बाद ये एयरटेल के ऑफिस में जाएगा, ये एयरटेल का सर्वर है, एयरटेल के सर्विस कॉर्पोरेटर्स, फिर के उसके बीच में कुछ पब्लिक सर्वर्स आईपी पढ़ रहे हैं, पब्लिक आईपी, फिर इनके पास जा रहा है, फिर बीच में एयरटेल के बाद डायरेक्ट नीचे पहले ये पब्लिक आईपी में, फिर पब्लिक आईपी बदलता रहता है क्योंकि डायनामिक पब्लिक आईपी में फिर फिक्स पब्लिक आईपी नहीं है। तो आप घर में लगे हो उससे सब में डायनामिक पब्लिक आईपी होते हैं, डायनामिक स्टैटिक नहीं होते, मतलब फिजिकल नहीं होते। मतलब ये क्या करते हैं, एयरटेल के पास गया, एयरटेल के पास google.com का डायरेक्ट रास्ता है और वो कहाँ से कहाँ होके जा रहा है वो ट्रेसट कमांड से पता चलता है। ट्रेस करके बताओ कि कौन कौन से रास्ते से होके गया, जिन जिन रास्तों पे जा रहा है उसको कितना कितना मिली सेकेंड का लग रहा है वो बता रहा है। कहता है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम और लास्ट वो बता के रखता है कि कितना उसको मिली सेकेंड लगे, जहाँ पे वो अटक रहा है जिसका मतलब वो आगे कुछ चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है डिवाइस, वो डिवाइस जो है कह रही है कि भाई मैं तुम्हारे पैकेट को अलाउ नहीं कर, मेरा ट्रेसाट ब्लॉक कर रखा है। तब वो आगे पैकेट तो आ रहा है लेकिन उसने कोई चीज़ को ब्लॉक कर रखा है कि वो आपको पिंग नहीं जाने दे। फॉर एग्जांपल कई सर्वर ऐसे होते हैं जिसको आप पिंग नहीं कर सकते, लेकिन मेथड लेकिन अगर पिंग नहीं खुल रही लेकिन पिंग नहीं होगा, लेकिन उसने पिंग वाला आईसीएमपी प्रोटोकॉल है उसको ब्लॉक कर रखा है। तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पिंग वाले प्रोटोकॉल ब्लॉक कर दे तो उसका पिंग नहीं होगा लेकिन बाकी सब कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें ना देखो ना बीच में नहीं जा रही, इसका मतलब ब्लॉक हो गया। तो मैंने इसको रोक दिया, रोकने के लिए कंट्रोल सी कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरी बात आपको बता रहा था कि पिंग होती है एआरपी, एआरपी का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या काम करता है आपका, एआरपी, एआरपी क्या काम करता है, इसका काम होता है मैक से आईपी से मैक लाना, आईपी से मैक लाना। कहने का मतलब मुझे आईपी मान लो, मैंने लॉजिकल एड्रेस मालूम है, फिजिकल एड्रेस ला के देता है, और ये जो आर जैसे हमारा मैक टेबल होता है वैसे आर टेबल में बनता है, कहाँ बनता है, वो आपके पीसी बनता है, पीसी में बनता है, वो आपके राउटर में बनता है, पीसी में राउटर में क्या आप आर टेबल बनता है, यानी जितने लेयर 3 डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर आपका क्या बनता है, आर टेबल बनता है।
आर्प टेबल का काम क्या आता है, मैक आईपी से मैक लाना। जैसे डीएनएस का क्या काम है, आईपी से नेम को रेजोल्यूशन करना, वैसा वैसे वैसे नेम से आईपी, आईपी से नेम, वो डीएनएस का काम है। वैसे ही एआरपी प्रोटोकॉल का काम है आईपी से मैक लेकर के आना। और अगर कहने का मतलब यहाँ पर अपने कंप्यूटर में ए आर पी करूँगा तो कमांड होती है ए आर पी माइनस ए करो, तो इसका मतलब होता है कि ये दिखाए कि जिस जिस से आपने कम्युनिकेट किया है, जिन जिन बंदों से, उनका आईपी आपको मालूम था, और उसके आईपी का जो मैक एड्रेस है, यानी कि जहाँ से वो आया उस केस में वो कौन हो सकता है, गेटवे हमारा, अगर हम बाहर की बात करें तो, या फिर हमारा डायरेक्ट एक, अगर आप किसी कंप्यूटर से पिंग करें तो उस केस में क्या होगा, हमारा वो आर्प होगी, यानी उसका मैक एड्रेस होगा। ARP मैक एड्रेस, इस आईपी से ये मैक एड्रेस है, इस आईपी का ये मैक एड्रेस है, इस आईपी का ये मैक एड्रेस है। ऐसे ही पर्टिकुलर मैक एड्रेस बता देगा अगर आप आर्प टेबल में देखोगे। और इस आर्प टेबल को डिलीट भी कर सकता है अपने कंप्यूटर से। मैं चाहता हूँ ये दोबारा से बनाए, ये कब बनाए, जब पहली बार कम्युनिकेशन करेगा आईपी से तब बना लेगा। जैसे मैक एड्रेस टेबल है, कैम टेबल है, वो भी क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन होता है देन कैम टेबल में एंट्री हो जाती है, तो इच्छा इस पोर्ट पे ये वाला मैक रखा हुआ है तो नोट कर लिया मोड टेबल में। वैसे ही आप टेबल में क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम किसी को पिंग करते हो उसका आईपी आपको मालूम होता है, उसका मैक एड्रेस वो खुद ब खुद ले आता है और अपने पास टेबल में रख लेता है। और ARP-G कमांड चला दूंगा तो क्या होगा, आर्प टेबल डिलीट हो जाएगी। कहाँ से, मेरे पीसी से, लेकिन वो दोबारा भी बन जाएगी। क्यों, दोबारा अपने आप पिंग करेगा गेटवे को, चाहे वो अपने आप करे चाहे मैनुअली करे, वो अपने आप आर टेबल को रीजनरेट करेगा। आर टेबल क्या होता है आपका, ऑब्वियस ही बात है, लेयर 3 पे काम करता है, नेटवर्क लेयर का पार्ट है, क्योंकि आईपी से मैक ला रहा है। एक्चुअली में ये काम किसके ऊपर कर रहा है, आईपी के ऊपर, इसलिए ये क्या है आपकी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, एआरपी यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, आईपी से मैक लाना, लेकर के आना। और ये टेबल में क्यों रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आसानी हो पैकेट भेजने में। कहने का मतलब आपके पास दोस्त था, दोस्त के कुछ एड्रेस है, अपने एड्रेस सेव करके रख लेते हो आप लोग। इन नेक्स्ट टाइम मैं अपने दोस्त से कुछ मांगूंगा या उसको कुछ भेजूंगा, पैकेट भेजूंगा, कुरियर करूंगा, उस टाइप का मेरे पास पहले से, तो आप उसका फिजिकल एड्रेस सेव करके रख लेते हो अपने पास। वैसे ही कंप्यूटर भी यही काम करता है। अच्छा, इस आईपी से पिंग करते हो तुम, ठीक है, इसका फिजिकल एड्रेस भी ध्यान रख लेता हूँ। जब नेक्स्ट टाइम आप पिंग करने की कोशिश करते हो तो आपको पैकेट भेजने की कोशिश, तो मेरे को पता है इसका मैक एड्रेस है, भेज दो भाई। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक दिशा सीधा लगा, इसको मालूम मैक एड्रेस क्या है, तो एडवांस में टेबल बना के रखता है, ताकि जो है पैकेट आए उसमें से डेस्टिनेशन का, तो उसको मैक एड्रेस उसको पहले से मालूम है। तो वो एआरपी की मदद से, यानी ये जो प्रैक्टिकल एआरपी, ये जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये जो टेबल आर्प टेबल है उसकी जरिए वो क्या ध्यान में रखेगा कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो अच्छा इसका मैक एड्रेस ये है, पहले से रख लूंगा। तो आर्प टेबल क्या, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्योंकि ये आपका लेयर 3 पे काम करता है और आईपी से मैक लेकर के आना इसका काम है। दूसरा होता है हमारा आर ए आर पी की कहानी थोड़ी अलग है, इसको हम बाद में भी समझे, लेकिन इसका हम सिर्फ मतलब इतना है, रिवर्स। जो हम रिवर्स की बात करें, जैसे डीएनएस में बात करें, डीएनएस में IP2 में दोनों रेजोल्यूशन करेगा, लेकिन इसमें में ARP में क्या है, इस ARP को IP से मैक लाएगा, और RARP वाला जो है वो मैक से IP लाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है आपका, ये थोड़ी सी अलग जगह पे काम करता है। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, इसका एग्जांपल आप DHCP को जैसे, जहाँ पे आपको मैक पता होता है किसी का, और वो बोला मेरा मैक एड्रेस ये है, मुझे आईपी दे दो, तो तब ये काम करता है। तो ये उल्टा है, ये मैक से आईपी लाने का काम करता है। और RARP तो इसका भाई है, ये उल्टा काम करता है, मैक से आईपी लेके आता है। तो ठीक है, ये कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे और नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है एक्चुअली में। ऐसा नहीं कि ये आपका जो है, ये निचली लेयर पे काम करने का तो है, ये टॉप लेयर पे काम करता है तो पिछले वाली लेयर पे काम करोगे ही करोगे। तो यहाँ पर क्या है, ये आप यहाँ पर लेयर 3 पे करेगा ही करेगा, और लेटरली लेयर दोनों लेयर पे करेगा। तो पूछा जाए आपसे कि ये दोनों ही नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल हैं, ये का काम है आईपी से मैक लाना, एक का काम है मैक से आईपी लाना। इस तरह से काम करता है।